मावशी मावशी इकडे मावशी मावशी इकडे या बाजूला. Hi Palak. It's good and very excitement to the means ninth class especially those students those who are giving us farewell to the 10th class, and the 10th class students also they are also happy as well as they are somewhat sad regarding this farewell, in the sense sad in the sense they are going to be apart from each other, and they are happy to attend their board exam. So that's it. I'm also feeling such a way. What about the decorations? Decoration is done by especially my home class, and I know very well about of their confidence because they do their best only, and there is no more comments regarding the decoration. We are enjoying here a lot because we will going to be soon celebrate our farewell. Yes, I am so excited. Excited for the farewell party? Yes, we are. हाय प्रणति, हेलो। हाय पलक। तो आज हमारा फेयरवेल है, आप हमारी डेकोरेशन देख ही सकते हैं पीछे से। और हमने बहुत मेहनत करी है डेकोरेशन करने के लिए, एंड वी होप कि हमारी बहुत अच्छा होगा। We are so excited for the fair. चले जाओगे पर आशा है कि जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही खुशियाँ पाओगे।
my colleagues and my younger students. You are welcome. आज मैं आपके सामने गाना चाहती हूँ, लेकिन बिस्लरी का पानी पी के सारा बदलना बैठा है, इसलिए नहीं बोल पाई। लेकिन आपके लिए कुछ तो सुना के जाना आज। स्टार्ट। स्वागत है लाइसेंस में स्वागत है, स्वागत है लाइसेंस में स्वागत है, मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, आपका लाइसेंस में स्वागत है। ज्ञान का मंदिर गुरुजनों से पवित्र यहाँ रहता है, ज्ञान का मंदिर गुरुजनों से पवित्र यहाँ रहता है। आशीष का जिंदगी आपको सदा मिलता है, आशीष का जिंदगी भर आपको सदा मिलता है। सर्व गुणों से संपन्न होकर आसमां में उड़ते रहो, सर्व गुणों से संपन्न होकर आसमां में उड़ते रहो। भारत माँ के लाल बनकर माँ के सपनों को साकार करो, माँ अपने माँ बाप के सपनों को साकार करो। स्वागत है लाइसेंस में स्वागत है, मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, आपका लाइसेंस में स्वागत है। आप आए तो खुशियाँ छाई लाइसेंस के प्रांगण में, आप आए तो खुशियाँ छाई लाइसेंस के प्रांगण में, आपके गुणों की बांसुरी बजती रहे सारे विश्व जगत में, सारे विश्व जगत में। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं पुण्य मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और जाते जाते एक मराठी में वाक्य कहूँगी। निरोपाच्या हळव्याक्षणी दाटून येते आठवण, निरोपाच्या हळव्याक्षणी दाटून येते आठवणी, डोळ्यात साठते पाणी, मात्र मूक होते वाणी, मात्र माझी मूक होते वाणी. थँक्यू. I expect silence from the boys backside. Complete silence. Respected principal ma'am, all the respected teachers, and you all are my dear students. I'm standing here to give a kind of introductory note, but it's not exactly introductory note. It's a kind of some advice point, and why we have all gathered here, that I'm going to share few words. Before I speak something, a special question I have for 10th class. I hope all the 10th class students, along with taking selfies and all, they are listening to me also. Yes? Special question for 10th class. Genuinely you have to give me answer. How many of you are really happy today that you are leaving the school and going out? Kindly raise the hand and let all of the teachers will see your face. Ask your heart and raise your hand. How many of you are really happy today? क्योंकि कुछ दिन पहले, before some days back, many of the students, you were not coming to the school on time. You were kept outside for not attending the assemblies and all. That's my first question. How many of you are really happy that today is the last day of your schooling life here of 10th class? Kindly raise the hand. I just want to see, along with my all other teachers, we want to see कि कौन कौन बहुत खुश है. Raise the hand. Though everyone is looking very colorful, very happy, but I am sure that inside you are not happy. Yes? Yes. Many of the teachers along with me, we are not expressing the words, but I do feel a bit emotional because I was completely connected with you the last 1 year. बहुत गाली हुआ है, बहुत kind of punishment and many other things that I have given through. But today I don't know why it's a kind of internal feelings, कुछ अलग type का feel हो रहा है. It feels really good. I am sure that the teachers, those who are sitting here, जितने भी हम teachers यहाँ पे बैठे हुए हैं, we have definitely experienced the day and the feelings which one you are feeling right now, either maybe in the school or maybe in the college, I'm sure. Yes. And the second question, how many of you have kept the feelings? कौन से टीचर्स के ऊपर किस किस का गुस्सा है अभी तक? कौन वो रख के जा रहा है?
Very good. Very genuinely he raised the hand. Keep quiet. Keep quiet. Okay. Anyway, so those are the two questions that I just wanted to ask, but I just want to address today's program as being the class teacher of 10th class. I welcome all the teachers and you all to this program, and I just want to say 2-3 advice points and advise words that from today onwards you are getting into a new phase of your life, and I am sure that after the final examination many of the students you will be going to different places, you will be studying in different colleges and all, you will have so many memories and all. Many of the students you have studied here from the childhood, तो तुम्हारे पास बहुत सारे memories है. Yes, many of the teachers I can see here, those who have taught you, I would like to take the names and also कि तुमको बचपन से तुमको सिखाया. I am sure कुछ नाम से कितवर मैम, मैम, शायद पुष्पा मैम and रेखा मैम, and I am not sure about any other teachers. पर ऐसे कुछ teachers हैं जो कि तुमको बचपन से, I think रविंद्र sir भी connected है शायद as a senior teacher. तो इन सब teachers that they are giving you some good manners, many other things they have taught you. I just want to say one thing, nothing is constant in the life. Nothing is constant in the life. If you feel like that, कि हम यहाँ पे 10th class में ऐसे ही और 2-4 साल पढ़ते रहेंगे, it's not going to be possible. हम भी कभी बचपन थे, we studied 10th class, we became, grown up people. You also are going to face the same kind of challenges. But I just want to say, try to enjoy each and every phase of your life. Once again, I am saying that it's not constant. You are a student now. You become the grown-up student, and then you become a family person, family man in upcoming future. From all the teachers, we wish you good luck, best of luck for your future. And तुम जैसे अभी कर रहे थे अच्छा, we expect the same thing as your exam is approaching. On behalf of management, principal ma'am, all the respected teachers, we wish you all the best for the examination, and we want to see you happy and successful in the future. With this, I remain. May God bless you all, and definitely we are going to miss you. Thank you very much. आणि संपूर्ण टीम लायसन्स स्टाफ आणि त्याचबरोबर माझ्या कंपनीचे सर्व विद्यार्थी, बऱ्याच जणांच्या चेहऱ्यावर फार असं स्माईल दिसत आहे, काही मुलींचे चेहरे सुकलेले आहेत आणि जास्त काही न बोलता फक्त एवढंच सांगू शकते की अशीच पाखरे येते आणि स्मृती ठेवली जाते. खरोखर तुमच्या असंख्य अशा आठवणी आहेत. आणि जसं सांगितलं, अगदी लहानपणापासून ते 10व्या वर्गात जाईपर्यंत तुमचा तो खट्याळ स्वभाव, जो खरोखर बऱ्यापैकी क्लासरूमच्या बाहेर असल्यावरती पुष्पा मॅडम येत आहेत रे, पळा लवकर, तुमचा जोराचा असणारा आवाज आणि बऱ्याच वेळेला भीतीपोटी का होईना पण संपूर्ण शिक्षकांच्या कंप्लीट केलेल्या तुमच्या नोट्स, तुमचा असाच तुमचा उत्साह कायम असाच तुमच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी सदैव असाच जपून ठेवा. आणि स्वतःमध्ये असणारं लहान मूल खरोखर नेहमी जिवंत ठेवा. कारण असं म्हणलं जातं की मनुष्य कितीही मोठा झाला तरीही तो लहानच असतो. म्हणून संत तुकाराम महाराजांनी म्हटलेलं आहे, लहानपण देगा देवा मोठी साखरेचा रवा. कारण मोठं होऊन अनेक वेळेला पनिशमेंट घेणं सोपं असतं, पण अगदी मुलीसाठी साखर खाणं हे सुद्धा खूप मोठं कार्य आहे. म्हणून जास्त काही न बोलता एवढंच सांगू शकेल की मिनिमम 2 ते 3 दिवसामध्ये तुमचे एक्झाम येत आहेत. जसं प्री बोर्डला टाळ करत पेपर लिहिलेला आहे तसा न सोडवता किमान मन लावून पेपर सोडवा. तुमच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी माझ्याकडनं संपूर्ण टीचर स्टाफकडनं तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. खुशहाली है परवाज़ है काम तेरा, खुशहाली है काम है परवाज़ तेरा, तेरे सामने आसमां और आज हम यहाँ एक खूबसूरत
सफ़र के इख्तिताम और नए सफ़र के आगाज़ के लिए जो है ये लम्हा क्योंकि बिछड़ने का भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये लम्हा आगे बढ़ने का भी है। ये जो लम्हा है या ये जो दिन इस वक्त हम मना रहे हैं लाइसेंस है, ये हमारे लिए खुशी का भी दिन है और उदासी का भी। खुशी और उदासी इसलिए है क्योंकि खुशी इस बात पर है कि आप एक अहम तालीमी मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर और आगे मजीद कामयाबियाँ आपकी मुंतज़र है। जहाँ तक उदासी का ताल्लुक है, मैं उदास या हमारे जितने भी टीचर्स यहाँ या जो आप हैं, उदास इसलिए है कि आज हम आपको रुखसत कर रहे हैं, लेकिन ये सफर यहीं पर खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि असल जिंदगी जो आप गुजारते जा रहे हैं, उस जिंदगी की जद्दोजहद अब शुरू होने वाली है। आपने जो कुछ सीखा है अब तक, यहाँ जितने भी टीचर्स बचपन से रहे होंगे, फर्स्ट क्लास से आपके साथ कुछ टीचर्स रहे होंगे, लाइसेंस के साथ आपकी यादें जुड़ी हुई है, जो कुछ भी सीखा है हम चाहते हैं कि आप उसे अपनी अमली जिंदगी प्रैक्टिकल लाइफ में लगाओगे। ये क्लास रूम जो आप देख रहे हैं, जो दोस्त आपके जिनको आप नहीं जानते थे, लेकिन इस लाइसेंस ये जो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया, बहुत सारे लोग आपके दोस्त बन चुके होंगे। ये उस्ताद किराम जो आपके सामने बैठे हुए हैं, सब आपकी यादों का हिस्सा रहेंगे। मगर जो कुछ यहाँ सीखा है, हम उम्मीद रखते हैं और रखेंगे भी कि आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। जो नॉलेज आपने यहाँ से हासिल किया, जो इल्म आपने यहाँ से हासिल किया, इस इल्म को सिर्फ अल्फाज न समझें, बल्कि इससे अपनी सोच, अपने किरदार और अपनी रोशनी बनाएं। ये क्लासरूम, ये उस्ताद किराम, ये दोस्त वगैरह सब कम की बात लगती है, वक्त जैसे पर लगाकर उड़ गया हो, लेकिन ये यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा है। मैं बजट उस्ताद, क्योंकि मैंने पिछले 2-4 महीनों से ही मैं आपके साथ हूँ और मुझे बेहद खुशी है कि जो जिंदगी आप गुजारते जा रहे हैं उसका मैं भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दे चुका हूँ। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मैं आप लोगों के सामने 3 चीजें रखना चाहता हूँ। एक है कि मेहनत, जिसको आप हार्ड वर्क बोलते हैं। जिंदगी में आपको ये बात याद रखनी है कि कामयाबी जो है, सक्सेस, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जिंदगी में कामयाबी किस्मत से नहीं बल्कि मेहनत से मिलती है। और अगर आप हिस्ट्री को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, उन्हीं लोगों ने अपना नाम बनाया, अपना मुकाम बनाया जो मुश्किलात का सामना करने का हौसला रखते हैं। दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ईमानदारी है। ईमानदारी और सच्चाई हमेशा आपका हथियार होने चाहिए। और जो तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो एहतराम है। आप चलिए जहाँ पर सोसाइटी के किसी भी मोड़ पर जाएंगे या जिंदगी में जो कुछ भी आप बढ़ेंगे, आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो भी बड़े हैं, चाहे आपके टीचर्स हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे जो आसपास वो बड़े लोग रह रहे हैं, उनका इज्जत और एहतराम करना आपका फर्ज है। मैं आप पे ज्यादा वक्त यहाँ पर नहीं कहना चाहता हूँ, आगे पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस बात पर फख्र है और हम दुआ भी करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाएं। ये रास्ते जो है ये खत्म नहीं होते हैं, ये सिर्फ नए मोड़ हैं। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब जहाँ भी जाएं, कामयाबी आपके कदम चूमते रहे। गुजर जा अंदर से आगे की ये नूर, चरागे राह से मंजिल, चरागे राह है मंजिल मिला। थैंक यू। आदरणीय मुख्य अतिथि, all teachers, staff and my dear students, आज आपका यहाँ पे ये स्कूल में आखिरी दिन है और मैं आप सबके लिए आगे का आपका जो भविष्य है उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। देखिए, आप 10th क्लास में ये लाइसेंस छोड़ के जा रहे हो, इसका मतलब आप हमारे दिल से नहीं जाओगे। आपकी यादें हमेशा हमारे दिल में रहेगी। और एक बात मैं और मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे
मतलब 10th क्लास के बाद अब के आपके करियर की शुरुआत हो रही है। 10th क्लास मतलब आप पास हो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भविष्य में सब कुछ पास रहे हो। देखिए 10th क्लास के बाद भविष्यामध्ये काय चांगल्या गोष्टी आहे आणि काय वाईट गोष्टी आहे याकडे लक्ष द्यायचे आहे। एवढेच बोलून मी माझे 2 शब्द संबोधले आणि आपल्या पुढच्या भविष्यासाठी हार्दिक शुभकामनाएं देते। धन्यवाद। Please listen that side. Respected principal ma'am, all the teachers and all the students. आप यहाँ पर जो आए हैं और ये प्रोग्राम जो हमने अरेंज किया है, इस पर एक शुरुआत करने से पहले थोड़ा कुछ अल्फाजों में करना चाहूँगा। फूल बड़े नाजुक होते हैं लेकिन उन्हें कांटों पर सोना पड़ता है। फूल बड़े नाजुक होते हैं लेकिन उन्हें कांटों पर सोना पड़ता है। जिंदगी में बहुत लोग प्यारे मिलते हैं लेकिन उन्हें हमें कभी ना कभी खोना पड़ता है, उन्हें कभी ना कभी खोना पड़ता है। हर कोई जिंदगी में कभी ना कभी स्टूडेंट्स होता है और हम सब स्टूडेंट की दौर से जो है वो गुजरते हैं। आप सबको बताने के लिए बहुत है क्योंकि हर एक जो यहाँ पर टीचर आ रहा है उनके बहुत सारे एक्सपीरियंस है। उनका 30 साल का 40 साल का तजुर्बा है जो उन्होंने लिया है, वो आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको उन पर ध्यान देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि लिसनिंग इज द वेरी पावरफुल स्किल। लिसनिंग जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी स्किल है। और लास्ट बेंचेस, लिसनिंग जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी स्किल है। अगर आप अच्छा सुनते नहीं हो तो आपको अच्छा कहना नहीं आएगा, आपका नॉलेज जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो आपको कोई भी अगर बात कर रहा है तो उन्हें सुनना बहुत जरूरी है। तो ये सुनने की स्किल जो है पहले आप डेवलप करना, ये मेरी पहली आपसे गुजारिश है कि आपने जिंदगी में पहले अगर कोई स्किल सीखना चाहते हो तो पहले वो लिसनिंग स्किल है। लिसनिंग वो भी केयरफुली और फुल्ली फोकस। दूसरी बात ये है कि यहाँ से आपके एग्जाम है, एग्जाम होने के बाद आप कहीं पर जाने वाले हो, आपको मार्क मिलने वाले हैं। मार्क जो है वो आपको कभी कम मिल सकते हैं, कभी ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन एक बात ये बता दूं मैं आपको कि योर मार्क नॉट डिस्क्राइब योर फ्यूचर। किसी का भी फ्यूचर आपके मार्क डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। आपको क्या बनना है क्या नहीं बनना है, आपका पैशन फॉलो कीजिए, आपको जो पसंद है वो कर सकते हो। आज दुनिया वैसी नहीं रही है जैसे पहले थी, गिने चुने ऑप्शन थे। अभी एआई का जमाना है, एआई से आपका वॉर होने वाला है कुछ ही सालों में, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। जितने ज्यादा स्किल आप लास्ट बेंचेस आर्यन, जितने ज्यादा लास्ट स्किल आप में होंगे उतने ज्यादा जो है वो आपको प्रोग्रेस आप कर सकोगे। बहुत सारे स्किल जो है वो सीखने होते हैं। स्कूल सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि एजुकेशन आपको दे सके या थ्योरी जो है आपको पढ़ा सके। स्कूल ये होता है कि आपकी पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो सके। यहाँ पर आप स्पीचेस देते हो, यहाँ पर आप डिसिप्लिन सीखते हो। डिसिप्लिन इज द परफ्यूम ऑफ लाइफ। डिसिप्लिन जो है वो हर जगह पर आपको कामयाब बनाता है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर आपका जहाँ पर भी आप जा रहे हो जॉब करने, वहाँ पर तो डिसिप्लिन जो है वो कभी मत भूलिए। और फोकस जो है वो हमेशा अपने फोकस पर रखिए, आपका टारगेट सेट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बिल गेट्स के बारे में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट 2 मिनट में बताना चाहता हूँ। बिल गेट्स जो है वो मेरी तरफ से मैं आपको आने वाली जिंदगी के लिए और आने वाली एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा, शाळेच्या प्राचार्या एकता मॅम आणि दर्गावर शिकणारे सर्व शिक्षक, त्याचबरोबर माझा सर्व टीचर स्टाफ, त्याचबरोबर सर्व प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आज तुम्हाला निरोप समारंभ आहे। हा जितका आनंदाचा आहे तितका दुःखाचा पण आहे। भागवत गवळी आणि बघा, 10वीच्या मुलांना, 10वीची मुलं, 9वीची मुलं जेव्हा पायऱ्या खाली उतरतात, चालतात, तेव्हा मी त्यांना नेहमी म्हणत असते आणि तुम्ही कॉलेजमध्ये नाही गेले, बरोबर आहे का नाही? पण आता ती वेळ तुमच्याकडे येणार आहे काही दिवसातच, तर तेव्हा तुम्ही कसं करता चालेल असं मला वाटते। आज आपण स्कूलमध्येच आहे, माझं म्हणणं बरोबर आहे, तुम्हाला आवडणार नाही पण लक्ष द्या। त्यासाठी त्यांना धन्यवाद देते। धन्यवाद। ऐसी क्या चीज है जिसका नाम लेते ही वो खत्म हो जाती है? अपनी अलग पहचान, उपहारों के साथ करेंगे आपका सम्मान। So now let's start the felicitation ceremony. I would like to call upon Janki to felicitate
अक्षर सर नाही. Afternoon, everyone. Present at the farewell of class 10 batch 2024-25. My name is Purva Deshmukh. I would like to express my feeling on this beautiful occasion of farewell party. बचपन का दिन, जी हाँ, हमारा स्कूल जहाँ जाने को डर लगता था, पर आज यहाँ से जाने का मन है, जिसका आना हमें मिला गया. परंतु कब से रहे थे हम इस दिन की तैयारी, पर आज छूट रही है स्कूल से यारी. हम अलविदा कह चले एक अपने मन के एहसास को भी, क्योंकि आज के बाद हम इंस्टीट्यूट के लिए पढ़ाई हो जाएंगे. हमारे बेंचेस पर किसी और की जगह होगी. हमारा स्कूल अब किसी और का अड्डा होगा. हमारे प्लेग्राउंड अब किसी और का अड्डा होगा और स्कूल के आखिरी बेंचेस पर किसी और की जगह होगी. प्रिंसिपल के रूम में अब किसी और की शिकायतें आएंगी. याद आएंगे वो टीचर्स जिन्होंने समझाया माँ बाप की तरह, पढ़ाया भगवान की तरह. यूँ तो हर टीचर की वैल्यू बेहद है जिंदगी में और हमेशा रहेगी भी, पर शायद इतने अच्छे टीचर अब दोबारा नहीं मिलेंगे हमें. आज वक्त को रोने का जी चाहता है, कुछ पीछे छूटने का डर लगता है. जल्दी हम इस दिन को खो देंगे. जाते जाते स्कूल से हम इस स्कूल से दूर होने वाले हैं. हम मिस करने वाले हैं विराट सर के जोक्स और स्टोरीज को. हम मिस करने वाले हैं बालाजी सर करते हुए मूव्स और सॉन्ग को, उनके स्क्रीन में वाली नेचर को. हम मिस करने वाले हैं सजा सर की शायरी को और उनकी कश्मीर की बातों को. हम मिस करने वाले हैं विनोद सर की रोशनी को और मिस करेंगे पुष्पा मैम की बातों को. हम मिस करने वाले हैं वो मराठी और हिस्ट्री के पीरियड में झपकी आना. सोचा नहीं था यह सफर जल्द खत्म हो जाएगा. स्कूल से यारी का साथ यूँ छूट जाएगा. वो हिस्ट्री और मराठी के पीरियड में बुक ना लाना और मैथ के पीरियड में मस्ती करना. साइंस में ले रहे थे टिकट इजी, फिर पूरे साल में उसके नोट्स में बिजी. आज लगता है क्या पीछे रह गया, कहीं अनकही बातें रह गई, कुछ ना कहने वाली यादें रह गई. अब कौन हमें मैट्रिक देकर बुलाएगा. मेरे दोस्त सोच रहे बचकर पढ़े अब क्या बुलाएगा. ये वक्त लगता है जल्द बीत गया. आज वक्त फिर मुझसे जीत गया. आज बुरा तो मजाक मेरा, मैं बुरा नहीं मानूंगी. तुम्हारी हंसी में थोड़ा मैं भी मुस्कुरा दूंगी. घूमने को शायद हमारा था. पढ़ते पढ़ते ये वक्त भी आ गया और नए पड़ाव पर बढ़ने का समय आ गया. स्कूल की बिल्डिंग जब भी दिखेगी यकीनन आंखें नम हो जाएगी. ये स्कूल वाली लाइफ यारों हमें बहुत याद आएगी. जिंदगी में मिलने की फरियाद करते रहना, ना हो सके तो दिल में ही याद करते रहना. दिल थाम लो, आगे पहुँच लो, रो हम जुदा ना चाहते हुए भी हमें कहना पड़ रहा है अलविदा अलविदा अलविदा. थैंक यू. बचपन में चलकर इस मकान पर आ गए हैं जहाँ से हम जिंदगी में उड़ान लेंगे. पता नहीं हम दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पर हमें एक अच्छे दोस्त को हमेशा हमारे मन में जिंदा रखना है. सबसे पहले मैं उन सभी टीचर्स का थैंक्स करूँगा जिन्होंने बहुत खाबक किया और हमें बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है. आप सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद. और उन फ्रेंड्स का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूरे यार हमको सपोर्ट किया और हमारी हेल्प की. आज 11 फरवरी 2025 जो कि हमारा फेयरवेल है और जो इस स्कूल और क्लास 10 की मेमोरीज है मैंने कभी भुला नहीं पाऊंगा. सबको आज का फेयरवेल मुबारक हो. थैंक यू सो मच. From class 10, today I am here to tell you about my school journey. शायद फिर वो तकदीर मिल जाए, जीवन के वो हसीन पल मिल जाए. चल फिर से बैठे क्लास की उस लास्ट बेंच पर, शायद वो पुराने दोस्त फिर मिल जाए, फिर मिल जाए. अभी कल परसों की तो बात है, असेंबली में लेट आने की वजह से विराट सर हमें डांट रहे थे और वो क्लास 10 का पहला दिन जब बालाजी सर ने कहा था ये पहला दिन कब आखिरी बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा. कल ही तो 2 छुट्टियां नहीं. काही तर नंतर नाही का मागो मराठीत होता. सगळ्यात पहिले सांगतो
आमचा 10th क्लासचा पहिला दिवस. सगळ्यात पहिले लेक्चर झाले. विराट सरने लेक्चर केलं, बालाज सरने लेक्चर केलं. विराट सर बोलले होते ज्या दिवशी आपण फेअरवेल करून असतातच त्या गोष्टी करू. आज त्या होताना बघतोय मी, खूप आनंद होत आहे. आज सगळे माझे भाऊ, सगळे माझे मित्र सगळे आलेले आहेत. आणि सगळ्यात पहिले 9th क्लासला पोरं म्हणून राहिले होते यायचं नाही, काय करायचं, स्टडीचा लोड आहे, घरचे खूप बोलत आहेत. आणि सगळ्यात पहिले शाही सरच्या काही गोष्टी सांगायला इच्छित नाही तुम्हाला. आमच्या म्हणजे होल डे मधला फ्री पिरियड म्हणजे शाही सर होते. आम्ही जसे शाही सर आहेत, शाही सरला मोठ्या मोठ्या गोष्टी बोलायच्या. सर सर आज ऐसा करणे का, सर सर अब ऐसा करणे का. मग कसे सर मोबाईलवर आपले एका बेंच घेत एका कॉर्नरमध्ये जाऊन बसून जातो. आम्ही आमचं चाललंय बडबड बडबड बडबड. सर काहीच नाही, सर आपल्या मोबाईलमध्येच. आणि विनोद सर सुद्धा, विनोद सरने खूप गाईड केला आम्हाला. खूप विनोद सरने म्हणजे विनोद सर आम्हाला खूप मारलं. विनोद सरनी आम्ही बोलायच नाही फ्रेंडला, पण ते कसे येऊन मारायचे. आमचे 2-3 जणांना ते इतकं मारलं त्यांनी कंप्लेंट पण केल्या. काय म्हणजे अभ्यासासाठी त्यांनी खूप फोकस केला आमच्यावर. विराट सरने खूप चांगलं शिकवलं आम्हाला. दुसरी गोष्ट म्हणजे विराट सरने जे इम्पॉर्टंट आहे ते सगळं टोटल जे 10 साठी आहे ते टोटल आम्हाला इन्फॉर्मेशन दिली विराट सरने. आणि पुष्पा टीचर म्हटलं कसं आहे, आम्हाला 3rd क्लासपासून पुष्पा टीचर आहे. आणि ऐदोराबादचं इकडून डायरेक्ट सांगितलं तुम्ही पेन किंवा सुई किंवा टाचणी सुद्धा पडली 4th फ्लोअरवरती, तर मला 1st फ्लोअर लावायला. मॅडमनी सुद्धा खूप जीव लावला आम्हाला. मॅडम आम्हाला KG2 पासून मॅडम आम्हाला. आणि पुष्पा टीचरने सुद्धा खूप जीव लावला. पुष्पा टीचरच्या अगदी मनापासून धन्यवाद. सगळ्या टीचर स्टाफचा अगदी मनापासून धन्यवाद. इथं मी माझं भाषण संपवतो. Superpower in the sense, we can only expect superpowers. But maybe if I say about superpower, then obviously is that not to leave our nearer and dearest, which is not possible, never. If we talk about this farewell also, only superpower is that, yeah, I want to be present with everyone, with all my nearest and dearest, entire life. I can't say that I don't want to die. We all have to die one day. But yeah, that is my superpower is that I don't want to forget anyone. हमारे ह्यूमन की टेंडेंसी एक चीज है. मैं have attention 10th class, 9th class, I guess. तो एक इंसान जैसे आप पढ़ाई आज पढ़े तो कल भूल जाते हो, वो तो है obviously, but इंसान को भी हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं. आप लोगों को याद नहीं होगा किससे कब आप 5 years के एज में मिले हो, अब तक आपको याद नहीं होगा. अपने रिश्तेदारों को तक याद नहीं रखते, फ्रेंड्स दूर की बात है, बहुत कम लोग याद रख पाते. आई थिंक 1% से भी कम. So if you ask me about my superpower, I want to remember everyone till I die, because I think that thing I will cherish till I die. So that superpower I want to have. Thank you for asking. Thank you so much. एयरपोर्ट पे हो और आपको दिल्ली से मुंबई जाना है फ्लाइट में. दिल्ली से मुंबई को फ्लाइट जा रही है 90 मिनट्स में, बट वही वो फ्लाइट को मुंबई से वापस दिल्ली आने में लग रहा है 1.5 hour. ऐसा अगर आप दिल्ली से मुंबई जाना है और वो फ्लाइट जा रही है 90 मिनट्स में, बट वही वो फ्लाइट को मुंबई से दिल्ली आने में लग रहा है 1.5 hour. Especially, I don't want to take much more time, and the thing is, it is a farewell to you, in the sense, this
class 10 students are going to be apart from each other, especially this situation, it creates dilemma in the sense happiness and sadness. Once again, I have to keep quiet. Boys backside, keep quiet. भाई रुद्रा कुछ बात करना है क्या? आइए इधर आइए, कोई बात नहीं. यस यस सर. पूर्वा. यस एवरीवन keep quiet bas then it is a situation like you are going to your for your higher studies, that is your future, as well as you are going to be apart from each other physically. It is one of the sad moments. Even though we need to adapt according to our situation, nothing is permanent in our life, but the change is permanent. Okay, next यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी है क्लास 10 के या 9 के और जो भी है, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए परिश्रम करना होगा. वो परिश्रम से ही फल मिलेगा. वो परिश्रम करने के बाद ही फल मिलेगा. इसका मतलब ये होता है कि सक्सेस डजंट कम्स टू यू, यू गो फॉर सक्सेस. सच में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी ऐसे ही है. आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें परिश्रम करना होता है, तब जाकर तुम्हें फल मिलेगा. नेक्स्ट एक बहुत यस बहुत सारे ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए तो मैं नहीं करना चाहता हूँ. मेरा स्पीच यहीं पे एक छोटा सा शांत है मैं समाप्त करना चाहता हूँ, ताकि जैसे कि अभी तक जो पढ़े हैं सब कुछ ठीक ही था. अभी भी जो एग्ज़ाम लिखना है अच्छा ही लिखना है, यही मैं भगवान से दुआ कर रहा हूँ. नेक्स्ट उसके साथ में जैसे एक सॉन्ग है ना, मराठी में एक सॉन्ग है जैसे कि मी 10वीचा उमेदवार, अभ्यासाचं माझं लक्ष सार. 10वीचा उमेदवार, अभ्यासाचं माझं लक्ष सार. जेव्हा बघतो मी पेपरकडे मला आउटस्टँडिंग केल्यासारखं वाटतं. परफॉर्मेंस शुड बी आउटस्टैंडिंग, मतलब जो भी किसी को भी डर नहीं देना चाहिए, ताकि मैक्सिमम स्कोर करने का प्रयास करो. और इसी के साथ साथ मैं सभी को those who are present here, such as my dear colleagues and my dear students, as well as especially principal ma'am, everyone of us, I'm going to express my gratitude. Thank you so much. I'll ask everyone to maintain silence. Yes, boys. Last bench. Maybe this silence is asked for the last time from my side. You might have had a lot of time in the assembly time to maintain silence from all the teachers, as well as from my side also. So I'll ask you for the last time to maintain silence. Can I have silence? Yes? Boys? Right. Now, first of all, a very good afternoon to all my staff present over here, especially those who are teaching to 10 and others, as well as my dear students. First of all, this program was effortlessly, it's a pure hard work of 9th class students. Yeah. I'll give all the credit to my 9th class students. So a big round of applause for them. Yes. Again, last bench, I just can see one or two talking. Like I said, I want to express certain things. I won't take much time. Bhargav, your voice is audible. Like I said, yeah. So, ज़्यादा time नहीं लूँगी. I'll take a little bit of time of yours because we have a lot to enjoy, a lot to explore. We are gathered here to obviously for your farewell party. ये आपका दिन है obviously.
लेकिन इसलिए आपको साइलेंस रहने के लिए बोला जा रहा है बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो आपने भी किया है और ऑब्वियसली उत्साह है और किया है, वो सब डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्टली. आई जस्ट एक्सप्रेस दैट थिंग. आई जॉइंड लाइसेंस ऑब्वियसली लास्ट ईयर एंड April month. And after that, I came in contact with 10th as well as 9th also, right? I guided you chemistry for a very short period of time, hardly few days until and unless Balaji sir come. I just want to say that you have a lot of potential within you. Though आपने hashtag मगर मस्ती खोर का दिया है, you all are. But the immense respect you give when you are serious in your class, it is you have that honesty within you. That I'll accept. आपके पास वो ऑनेस्टी है, वो पोटेंशियल है. जब क्लास में कोई आता है वो क्यूरियोसिटी भी है पूछने का कि क्या चीज़ है क्या नहीं. भले ही आपका लास्ट डे है, ऐसे वेरी फ्यू थिंग कि चीज़ें कभी दिखती नहीं. लाइक ऑल ऑफ माई टीचर दे स्पोक अबाउट यू, फ्यू ऑफ योर ओन स्टाफ ऑल्सो दे स्पोक एंड अबाउट यू ऑल्सो कुछ आए कुछ बोले. आप लोग यहाँ से बहुत सारी मेमोरी लेके जा रहे हो, राइट? आई होप आई एम टॉकिंग इन हिंदी. आज हमेशा इंग्लिश में बोलने वाले क्यों हिंदी? इसीलिए क्योंकि बहुत सारों को जानना है कुछ चीज़ें एंड इंग्लिश में इसीलिए स्पीच नहीं दे रही हूँ बिकॉज आप चीज़ों को समझो. अभी आपका समझना बस स्टार्ट हुआ है, आगे बहुत चीज़ समझना बाकी है. इट इज जस्ट द बिगिनिंग. रिमेंबर दैट थिंग. राइट नाउ यू आर इन सच ए फेज, यू ऑल हैव अ मिक्स्ड फीलिंग. एम आई राइट? सर ने आपको एक सवाल पूछा था, मैं बार बार वो नहीं पूछूंगी लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड. आपने हाथ तो जरूर नहीं उठाया. यू दो विल बी हैविंग सर्टेन थिंग इन योर हार्ट दैट यू आर हैप्पी दैट यू आर हैविंग अ फ्रीडम फाइनली गोइंग आउट ऑफ द स्कूल. समवट राइट? 30%, 20% ये हार्ट में एक फीलिंग होगा कि फाइनली स्कूल लाइफ इज ओवर. जो डेली रूटीन है, सुबह उठो, आओ, असेंबली में नहीं आए तो डांट खाओ, यूनिफॉर्म नहीं पहना तो डांट खाओ, राइट? क्यू में नहीं आए तो भी डांट खाओ, देन होमवर्क नहीं किया तो भी, एंड अ लॉट टू गो. अगर लिस्ट अगर देखा जाए तो बहुत सारे. बट एट द सेम टाइम उससे तो फ्रीडम आपको मिल जाएगा क्योंकि आप अभी कॉलेज जाने वाले हो. ऑब्वियसली वहाँ पे इतने केयरफुली आपको कोई नहीं पूछेगा व्हाई यू आर नॉट इन यूनिफॉर्म, व्हाई यू आर नॉट इन टाइम, क्यों आपने होमवर्क नहीं किया, कुछ भी. बट एक चीज़ आप जरूर मिस करोगे, वो है आपका स्कूल लाइफ. ये अभी आप मिस नहीं करोगे जो आप मेरे सामने बैठे हो. जब आप आज गेट से बाहर जाओगे और कुछ दिन बीतेंगे, देन यू विल रियलाइज दैट या आई विल मिस दैट टाइम शेड्यूल, आई मिस दैट थिंग. जब आपका अलार्म या फिर आपके मम्मी पापा, यस अगेन, जब आपके मम्मी पापा आपको बुलाने आते थे कि टाइम हो गया उठो जाओ, या जब वहाँ से आप एंट्री लेते थे आप लेट हो जाते थे, लेट लाइट बना के खड़े रहना या फिर कुछ भी, ये सब छोटी छोटी चीज़ें तब आपको याद आएगी जब आप यहाँ से चले जाओगे, राइट? जब इस गेट से बाहर जाओगे, दैट टाइम यू विल थिंक दैट स्कूल लाइफ वाज समथिंग डिफरेंट. दो कॉलेज लाइफ हम एंजॉय कर रहे हैं, करोगे ऑब्वियसली, विल एंजॉय एवरी फेज ऑफ लाइफ, राइट? देयर आर 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, यू नो, और आप ज़रूर एंजॉय करोगे हर एक स्टेज को. बट और एक चीज़ भी है, फैक्ट है कि वो स्टेज दोबारा लौट कर बिल्कुल नहीं आएगा. चाहे वो फोटोज देख लो, वीडियोस देख लो, लेकिन प्रेजेंट लाइफ जो आप अभी जी रहे हो वो वापस से लौट कर नहीं आएगा. दो दिस बैच आई एम रियली हैप्पी. आपने बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस को फेस किया है. विद इन दैट आपका कोऑपरेशन रहा, टीचर्स का डेडिकेशन रहा, तो आप यहाँ तक पहुँचे हो. एट द सेम टाइम जो आपका फीलिंग से आपने ज़रूर शेयर किया है और बहुत सारे ने शेयर नहीं किया है, लेकिन आप जो फील कर पा रहे हो, वी कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग ऑल्सो, दो यू कांट एक्सप्रेस. बट डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, yeah, school life is really different than other. Here, your schoolmates, your teachers, those who are guiding you, even the time schedule you are following, it is somewhat different, which will hit you when you go to your college. College word जब हम बोलते हैं बहुत excitement आता है, am I right? Yes. But along with that excitement, आप ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो, बहुत ज़्यादा. I will say one thing. अब सभी का एक ना एक
ड्रीम होगा, मैं राइट? किसी किसी का होगा, किसी किसी ने अभी तक प्लान आउट नहीं किया है कि आगे लाइफ में क्या शॉर्ट आउट करना है, जो होगा देखा जाएगा, राइट? ये भी होगा, दैट इज ऑल्सो गुड, राइट? इतना स्ट्रेस आउट क्यों लेना है, एक ही लाइफ है। बट एक चीज है, जब तक आप प्लान नहीं करोगे तब तक आप ड्रीम नहीं करोगे वो चीज के बारे में। लिसन टू मी बॉयज, like I said, this will be the last that you are even sitting here all together. आप जब तक प्लान आउट नहीं करोगे तब तक ड्रीम नहीं करोगे, और जब तक ड्रीम नहीं करोगे तब तक आपको होप नहीं मिलेगा। So always have a dream and hope. These are two things I'll say for your success. There is no shortcuts, right? Like your teacher said, there is no shortcut. Never, even if you get also, never chase any shortcuts. That will lead to a very lethal path. हमेशा ड्रीम कीजिए आपको क्या बनना है, और उस चीज का होप कीजिए, और श्योरली यू विल गेट सक्सेस, और श्योर। लेकिन एक चीज है, बोलते हैं ना कि अगर हम कोई प्लान करें उस हिसाब से कभी भी चीजें होती नहीं है, राइट? कुछ ना कुछ अननेसेसरी अनवांटेड सरप्राइजेस मिल ही जाते हैं, बट सरप्राइजेस आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर आप नेगेटिव वे में देखो आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे, अगर पॉजिटिव वे में देखो वो चीज़ कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जाएगी। तो प्लान जरूर कीजिए, लेकिन सरप्राइजेस का भी उम्मीद कीजिए। ऐसा ना हो कि आप प्लान करते रह जाओ और उम्मीद करोगे अकॉर्डिंग टू माई प्लान वही होगा जो मैं चाहूँगा। ऐसा कभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब आप प्लान करोगे ना तो कुछ ना कुछ उसमें सरप्राइजेस आपको मिलेंगे, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और जब आप एक बार प्लानिंग हो चुका है तो होप करना जरूर, चाहे उसमें आप फेल हो जाओ। ये बोलना बहुत गलत होगा दैट इफ यू प्लान और इफ यू वांट सक्सेस इट विल कम वेरी इजीली, नेवर। यू विल फॉल, रिपीटेडली आप गिरोगे, लेकिन उसी के साथ आपको आगे भी बढ़ना पड़ेगा। जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। सक्सेस जल्दी नहीं आएगा। सक्सेस is not your destination, it is just the path, it is a journey. Success is a journey, remember that. जो लोग बोलते हैं ना success is the final destination, they are wrong. Success आपका destination नहीं है, वो आपका journey है, और यहाँ से आप start कर रहे हो। ये सिर्फ आपका स्कूल एक फेज लाइफ था, वो हो गया। अभी जो स्टार्ट हो रहा है वो और भी चीजें आपको सिखाएगी, लेट मी से हंसाएगी एंड इवन रुलाएगी, लेकिन चीजों को उसमें से बहुत सारा चीज आपको सीखना पड़ेगा। लास्टली आई वांट टू से वन मोर थिंग। बहुत सारे एक्साइटेड हो, बहुत सारे प्लान आउट भी किया होगा आप लोगों ने, इसके बाद पार्टी करेंगे, हैंगआउट्स करेंगे। बट एक चीज आपको बता दूं, मैंने आपको बहुत बार बताया, ऐसे बहुत बार आप लोगों का कंप्लेन आया है मेरे पास, मेरे ऑफिस में, लाइक यू सेड, बहुत बार आपकी क्लास को जाके भी समझाया गया है, लेकिन ये बिटर स्वीट एक्सपीरियंसेस ही चीजों को आगे लेती है। अगर लाइफ में हर चीज इजीली मिल जाए तो लाइफ कैसी है, राइट? अगर लाइफ में कुछ ट्विस्ट ना हो, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो चीजों को याद कैसे रखोगे? हर चीज इजीली मिल गई तो, राइट? तो इसीलिए अपने लाइफ को इजी गोइंग मत लो। अभी से आई एम नॉट सेइंग अभी 10th का एग्जाम है, अभी तो स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर फ्री हो जाएंगे, देखते देखते टाइम का 12th का आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, फिर वहां पे आपका फेयरवेल सेरेमनी चलेगा। 12th पास हो गए नहीं हो गए वो खुद पे डिपेंड करता है, राइट भार्गव? आई कैन लिसन दैट। पास होते नहीं होते दैट्स नॉट मैटर, लाइक मार्क्स ऑब्वियसली नेवर डिफाइंस यू, बट यू कैन ट्राई हार्ड। मार्क्स भले ही आपको डिफाइन ना करे, बट आपके पेरेंट्स का जो होप है वो आप पर है। बहुत सारे यस 10th क्लास पास होना नहीं होना वो हम आगे देखेंगे, अभी वो कंसर्न नहीं है। आपके पेरेंट्स का जो होप है, बहुत सारे आपने फेस किया है मेरे ऑफिस में भी, कि जो होप है वो बहुत हाई है, मेरा तो वो होप को नहीं तोड़ना। कुछ भी करो लाइफ में, नेवर ब्रेक योर फैमिलीज ट्रस्ट एंड होप। Though you break anyone's hope, but never break your family's trust and hope. They are only one who will stand with you till they die. Remember that. I have said it many times. Am I right? Even though आपके फ्रेंड सर्कल भी अलग अलग हो जाओगे, फैमिली आपके साथ रहेंगे। इसीलिए
how many of you are seriously going to miss your school after moving out today? How many of you? Literally, there is no confidence. एक कोई हाथ उठाना है, सभी उठाएंगे. 9th class you have time for that. You can raise your hand down. Hands down. Yes. One more last thing I want to say, then we'll wrap it up. We have so many activities here. Farewell is not a goodbye. Listen to me carefully. Farewell is not a goodbye, but from my side and from all of our side, it is see you later. We'll surely see you later with all your success stories super soon. And from the entire school staff, management, I wish you all the best for your upcoming examination. Do your best. Thank you so much. एक क्वेश्चन, वो कौन है जो जितना भी गुनाह हो जाए पर फिर भी हमेशा जवान है? राइट आंसर। बट तालियां हो जाए मैम के लिए। जवान सोल्जर। So now I would like to call upon our respected principal ma'am to inspire us. Guys, अनुश्री यहाँ से चिट निकाल, 1 मिनट। चलो तुम अपना मर्जी से कोई भी एक निकालना बेटा, एक। ओके, ये वाला। चलो, दिस इज द टास्क। कॉपी एंड हर्षवर्धन यू हैव टू बी बैक। कोई भी छूटेगा नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, यू कैन गो बैक। दिस इज व्हाट द नेम। 10th class, कैन यू गेस whose name it could be? किसका नाम हो सकता है? First of all, say the boys and girls. Girls are saying boys. And what about the boys? What do you feel? Boys, are you thinking about the girls? Yeah, maybe it's your turn. Let's see. It's very interesting. Actually, मैं जब इंट्रोड्यूसिंग किया ये जो गेम, मैं देख पा रहा था बच्चों का रेस्पॉन्स क्या है 10th क्लास के बच्चे। और जो बच्चे सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था उनका ही नाम सबसे पहले आया। And it's actually part 1. Let's have a big round of applause. Part 1 is coming. Part 1, come forward. And after you take out the sheet and say what is the task for you. क्या है तुम्हारे लिए? It's a very special task actually. बहुत सारे टीचर्स को पसंद आने वाला है। टीचर्स क्या गेस कर सकते हैं आप ये टास्क क्या हो सकता है? टीचर रोल, टीचर के रोल। पक्का सर? टीचर बनना होगा उनको। अच्छा, let's see. It's very interesting actually. उनके टर्न में आया है सारा बाबा को। 19th के सॉन्ग, बहुत पुराना सॉन्ग हमें से उनको एक गाना ही पड़ेगा। Any of the song of the 19th century and I will say teachers फरमाइश देंगे क्या नाम है, क्योंकि आजकल के बच्चे उनको 90 से गाना इतना याद नहीं रहता है, पसंद नहीं होता है। And I'm sure that of course टीचर में 19th century के लिए पर गाना अच्छा लगता है। And kindly teach
सबको अच्छा लगता है, क्या आप एक साजिश कर सकते हैं? Okay, part one, the one is okay, now it's from girls, and all the girls are like, Bhagwan, mera naam na hai. Yeah, okay. Any case, whose name would be? Girls? It's not Shraddha, it's Sanika Savadini. Okay. Sanika come from? Fast. Take out one cheat. Take out one cheat from class. Yes. Okay, so you have to be very comfortable and do your task. तो उनके टर्न में है मेरा नाम जोकर, मेरा नाम जोकर, इसका मतलब उनको जोकर की एक्टिंग करना ही पड़ेगा. You can... Sarika, record one name. I have to check out icons. ये रोशनी के साथ क्यों दुआ उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों दुआ उठा चिराग से, बड़ी हूँ कौन से. अच्छा करने के लिए ताली होना चाहिए. भाई, सबसे आसान टास्क था ये.